پہلے آپ ایک زمانے میں JUI میں رہے، پھر ہم نے آپ کو دیکھا تحریک انصاف کے ساتھ، تو جماعتیں کیوں چینج کر رہے ہیں؟ سب سے بڑی غلطی ہمارے سیاسی کیریئر کی ایک ایسے شخص پہ یقین کرنا جو صرف باتیں تو کر سکتا ہے لیکن اس کی ڈیلیوری کچھ بھی نہیں. دیکھیے، مہارنگ بلوچ ایک شخصیت، ایک خاتون کا نام نہیں ہے. مہارنگ بلوچ ایک ایسا پراکسی تحریک ہے جو ان کے اسپانسرز نے لانچ کی. یہ سلسلہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ شناخت کا مسئلہ ہے، یہ حقوق کا مسئلہ ہے، یہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے، فارن فنڈنگ کا مسئلہ ہے کیا؟ یہ سردار ان کا ایک بھائی BLA کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرا بھائی پاور میں ہوتا ہے، تیسرا ایگزائل میں ہوتا ہے اور ان کے بیانیے کو آگے پروموٹ کر رہا ہوتا ہے. مسنگ پرسن بہرحال ایک مسئلہ ہے، آپ اس کو جتنا مرضی کارپیٹ کے نیچے ڈالیں، یہ مسئلہ ہے. تو اس حوالے سے کیا ریاست کی غلطیاں نہیں؟ ایک مہینے کی ابھی کی کارروائی سے جنرل عاصم منیر نے BLA کی، مہارنگ بلوچ کی، سردار اختر مینگل کی سارے غبارے سے ہوا نکال دی. پارٹی اگر مڈل کلاس کی ہوتی تو میں اس کو سپورٹ کرتا، لیکن اگر سرداروں کی ہے، الیکٹیبلز کی ہے، اسمگلرز کی ہے تو میں اس کو اپوز کروں گا. تو یہ گورننس ماڈل سسٹینیبل نہیں ہے. اس میں آپ ہزاروں ڈالر آپ ڈالیں، یہ بلیک ہول میں جائیں گے، عام آدمی کو کچھ نہیں ملے گا. اسی طرح کون سا گورننس لیول سسٹم سجیسٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ناظرین السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بہت ہی اہم انٹرویو لے کے آئے ہیں. ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، بہت ہی ریسپیکٹڈ گفتگو کرنے والے، بلوچستان کے سینسٹیو مسئلے پر بات کرنے والے صحافی بھی ہیں، فارمر انفارمیشن منسٹر بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، تھنک ٹینکس بھی ان کے بہت سارے چل رہے ہیں، اور یہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو سنجیدہ بات کرنے کی ابیلٹی بھی رکھتے ہیں. بہت شکریہ جان اشرقزئی صاحب، آپ تشریف لائے، میرے لیے بہت عزت کی بات. بہت شکریہ آپ کا مسعود صاحب. بلوچستان کے مسئلہ بڑا سینسٹیو ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن تھوڑی سی پہلے ہم پولیٹیکل بات کرتے ہیں. آج کل آپ کس جماعت میں ہیں؟ میں کسی جماعت میں نہیں. پہلے آپ ایک زمانے میں JUI میں رہے، پھر ہم نے آپ کو دیکھا تحریک انصاف کے ساتھ، تو جماعتیں کیوں چینج کر رہے ہیں؟ دیکھیے، سیاسی جماعتیں لوگوں کے، پبلک اوپینین کے، جیو پولیٹیکل حالات کے اور ان کے ویژن اور لیڈرشپ کی تمام چیزیں ایک پیرائے میں آپ دیکھتے ہیں. جب آپ سیاسی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ بدلتی ہیں، تو ہمیں بھی حق ہے کہ ہم اپنی سیاسی رائے کو بدل دیں. تو ان پارٹیوں نے ڈیلیور کرنا ہے اور ہم نے ان میں لبیک کرنا ہے. اگر ڈیلیوری کی ان کی صلاحیت کمزور ہے تو ہمیں کوئی یعنی وہی نہیں ہے، ہم کوئی مجبور نہیں ہے کہ ہم اسی سیاسی پارٹی کے ساتھ منسلک رہیں. تو ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے آپ کا حق ہے کہ آپ موو آن کریں. ٹھیک ہے. اچھا، عمران خان صاحب وغیرہ کے ساتھ کوئی رابطے جماعت کے ساتھ اب نہیں ہیں؟ نہیں، ابھی تو وہ تو بالکل ایک لائن میں کھڑے ہیں، تو پاکستانی ریاست کے خلاف کھڑے ہیں، تو ان سے رابطوں کا سوال تو نہیں بنتا. آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ بڑے متلل طریقے سے چینلوں پر عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کیا کرتے تھے. اس وقت آپ کو احساس نہیں ہوا کہ یہ شخص اس طرح ریاست کے خلاف بھی جا سکتا ہے؟ ہم سب کام ایک نیک نیت سے کرتے ہیں، غلطیاں ہم سب کرتے ہیں. ہم نے اسی نیک نیتی کی بنیاد پہ، ہم کا مطلب میں ایک سیاسی کارکن، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے جو شہری طبقات ہیں، سب نے یہ سوچ لیا تھا کہ شاید ایک ہوا کا جھونکا ہے عمران خان، شاید یہ پاکستان میں ایک تبدیلی لائے گا. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ جب وہ گورنمنٹ میں آ گئے، جو ٹیم انہوں نے سلیکٹ کی، جو اس کا ویژن تھا، وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ پاکستان کو ڈیلیور کر سکے. لہٰذا انہوں نے سب لوگوں کو پھر مجبور کیا کہ ہم روایتی پارٹیوں کی طرف واپس چلیں. آپ اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ دیا؟ سب سے بڑی غلطی ہمارے سیاسی کیریئر کی ایک ایسے شخص پہ یقین کرنا جو صرف باتیں تو کر سکتا ہے لیکن اس کی ڈیلیوری کچھ بھی نہیں. لیکن یہ صرف آپ کی غلطی تو نہیں تھی، ایک پورا سسٹم تھا جو عمران خان کو چلا رہا تھا. پورا سسٹم کا یہ یقین تھا کہ یہ سیلیبریٹی ہے، انہوں نے ملک کے لیے سپورٹس میں ڈیلیور کیا، تو شاید یہ پاکستانیوں کے اعتماد پہ پورا اترے گا اور پاکستان کی ریاست کو ان مشکلات سے نکالے گا جو پچھلے 50 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں روایتی سیاسی پارٹیوں کے ہاتھوں. لیکن وہ توقعات بر نہیں آئی، اس نے مایوس کیا. اس نے پاکستان کی ریاست کو ادھر تک پہنچایا کہ ہم بالکل ڈیفالٹ کے دھانے پہ آ گئے. پاکستان آلموسٹ معاشی طور پہ تباہ ہو گیا تھا، عام مڈل کلاس کے لوگ رونے لگے. تو پھر ان کو ریسکیو کرنے کے لیے ہر طریقے سے عمران خان کا یہ جو آصف تھا اس سے نجات پانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی. ٹھیک ہے. اچھا، اب کچھ گفتگو بلوچستان کے حوالے سے، اور بلوچستان کے یہاں بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں ہمیں بہت ساری مشکلات نظر آتی ہیں.
ایک طرف ماہر بلوچ کی ہے جو کہ اینٹی اسٹیٹ بات کر رہی ہے، ایک طرف دہشت گردی کا مسئلہ ہے، مطلب دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، ٹرینیں ہائی جیک ہو رہی ہیں، ادھر اختر مینگل صاحب اپنا دھرنا لے کے آئے، جو حکومت ہے صوبائی حکومت، اس پہ لوگ زیادہ اعتبار نہیں کرتے، مینڈل سمٹ بھی ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے ہی بات کریں، یہ انفورس ڈسپیئرنسز، مسنگ پرسن کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تو یہ اتنا کمپلیکس ایشو ہے۔ میرے خیال میں سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں ڈاکٹر ماہرک بلوچ کے حوالے سے، کہ کیا وہ جو ان کے والد کے حوالے سے یا جس طرح وہ کلیم کرتی ہیں اس میں کتنی صداقت ہے اور ان کے عزائم کیا لگتے ہیں؟ دیکھیے، مہارنگ بلوچ ایک شخصیت، ایک خاتون کا نام نہیں ہے۔ مہارنگ بلوچ ایک ایسا پراکسی تحریک ہے جو ان کے اسپانسرز نے لانچ کی ہے۔ ان کے اسپانسرز لوکل بھی ہیں اور فارنرز بھی ہیں۔ جس طرح بندوق والے ایک اسپانسرشپ کے بغیر نہیں آ سکتے، اسی طرح یہ سیاسی تحریک یا یہ جو خاتون کی لیڈرشپ میں BYC یہ بھی لانچ نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ان کی آبجیکٹیوز بڑے ہیں فٹ سولجر سے، چاہے وہ خاتون ہے یا مرد ہے۔ لہٰذا بیانیہ جو بھی ان کا ہے کہ ان کے باپ کے ساتھ کیا ہوا، فیکٹ اگر باپ کی ہم کریں تو وہ BLA کے ساتھ تھا، اور باقی جو مسنگ پرسنز ہیں وہ آج بھی BLA کے ساتھ لوگ ہیں جو مارے جاتے ہیں۔ یہ تو کوئی بلوچ، عام بلوچ ایک فٹ سولجر تو ہے، اب یہ مسنگ پرسن کے خاندان بھی ہیں، لواحقین بھی ہیں، ان کے ساتھ ان کی ہمدردیاں بھی ہیں اگر ان کے بچے ہیں تو لازمی بات ہے یہ مسنگ پرسن تو وہ جو پہاڑوں میں یا کیمپوں میں یا BLA کے ساتھ ہیں، اس میں کوئی باہر کے لوگ تو نہیں ہیں، فٹ سولجر تو یہی ہے۔ لیکن اس بیانیے کو انہوں نے ریاست کو ایک فٹ یعنی بیک فٹ پہ لانے کے لیے اس کو بنایا، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل دنیا ان کو ریکگنائز کریں، جبکہ BLA کو کوئی ریکگنائز تو نہیں کرتا، وہ تو ایک دہشت گرد تنظیم ہے، لبرل طبقات اس کو اون نہیں کریں گے، وہ بین ہے، وہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، لہٰذا سافٹ امیج جو ہے وہ BYC کا ہے یا مہارنگ بلوچ کا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ BLA اور BYC یعنی BLA اور ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی سوچ میں، عزائم میں کوئی فرق نہیں؟ اسے زیادہ ہے، سوچ میں ان کا ایک ہے، دونوں سپورٹ کرتے ہیں، ایک ریزسٹنس کے نام پہ بندوق اٹھاتا ہے، دوسرا ریزسٹنس کے نام پہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہے، ایک یعنی مائنڈ سیٹ چینج کرتا ہے یونیورسٹیز میں، ان کو لنک اپ کرتا ہے سپلائی چین سے کہ وہ ریکروٹ ہوں، پہاڑوں میں جائیں، کیمپوں میں جائیں، یہ ایکو سسٹم جو ہے وہ سسٹین رکھ رہا ہے BYC۔ بلوچستان کو پاکستان سے کٹ آف کرنے کے لیے ڈائریکٹ BLA روڈ بلاک نہیں کر سکتی، لیکن BYC کے اس لوائکنگ کے نام پہ، دھرنے کے نام پہ بلوچستان کو یہ کٹ آف کر سکتے ہیں۔ لہٰذا لوگوں کی ہمدردی کی وجہ سے خاتون کارڈ جو ہے یہ کھیل رہے ہیں۔ اچھا، BLA کی بات کیجیے، دیکھیے کسی صوبے میں یہ روایت نہیں ہے، اتنی تکلیف دہ چیز نہیں ہے کہ جو غیر بلوچی ہیں انہیں بسوں سے نکال کر شناختی کارڈ دیکھ کر لوگوں کے سامنے گولیاں مار دی جائیں۔ یہ سلسلہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ شناخت کا مسئلہ ہے، یہ حقوق کا مسئلہ ہے، یہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے، فارن فنڈنگ کا مسئلہ ہے کیا؟ دیکھیے، BLA ایک ایسی تنظیم ہے جو بائی پروڈکٹ ہے بلوچستان کی سیاسی لیڈرشپ کی، بالخصوص جو ایتھنک لیڈرشپ ہے۔ انہوں نے نسل پرستی کی بنیاد پہ ایک دشمن کھڑا کیا جس کا نام پنجابی کمیونٹی ہے۔ بلوچستان میں یہ 70 کے دہائیوں سے یہ بات شروع ہوئی کہ یہاں پہ ایک دشمن ہے جس کا نام پنجابی کمیونٹی ہے، حالانکہ پنجابی کمیونٹی ہمارے ساتھ 200 سال سے بھی زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ بلوچستان صرف بلوچ کمیونٹی نہیں ہے، 60% پشتون ہے، ہزارہ کمیونٹی ہے، سندھی اسپیکنگ ہے، پنجابی اسپیکنگ کمیونٹی ہے۔ بلوچستان کو لوگ جانتے نہیں، اگر وہ دیکھتے ہیں تو ان 3-4 سرداروں کے لن سے بلوچستان کو دیکھتے ہیں، لہٰذا اس بنیاد پہ ان کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دشمن کو آپ کھڑا کریں اور ان کو ان کی جسٹیفیکیشن دیں۔ اب دوسری بات یہ کہ BLA ان سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ سردار ان کا ایک بھائی BLA کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرا بھائی پاور میں ہوتا ہے، تیسرا ایگزائل میں ہوتا ہے اور ان کے بیانیے کو آگے پروموٹ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ ایک ہی ایکو سسٹم کے پروڈکٹ ہے۔ لیکن چونکہ ان کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو جب ان کو فارن فنڈنگ ہوتی ہے تو یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، کیونکہ 70 کی دہائی سے یہ لوگ لانچ ہوئے ہیں۔ اب دیکھا ہے کہ ہر 10 سال میں ان کو جب فنڈنگ ملتی ہے تو یہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، دھماکے کرتے ہیں، لوگوں کو شہید کرتے ہیں۔ فنڈنگ کہاں سے ملتی ہے؟ دیکھیے، بلوچستان میں انٹرسٹ کس کے ہیں؟ بہت سادہ سوال ہے، انڈیا ان کو کیوں کوریج دے رہا ہے؟
पाकिस्तान की टीवी से ज़्यादा उनको ख़बर होती है। इसका मतलब है इंडिया का क्रिटिकल इंटरेस्ट है, इंडिया का चाइना के ख़िलाफ़ जो है महाज़ है, चाइना के इंटरेस्ट हैं बलूचिस्तान में, गवादर में डीप सी पोर्ट बन गया है। इसी तरह अमेरिका का इस रीजन में इंटरेस्ट है, ईरान का इंटरेस्ट है, अफ़गानिस्तान का इंटरेस्ट है, तो वहाँ से उनको सेंचुरी, पैसे, सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी बुनियाद पे ये ऑपरेशन माउंट कर सकते हैं। एक नॉन स्टेट एक्टर के लिए वसाइल बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस ऑफिस पे के आपके वसाइल नहीं है, आप इस ऑफिस को नहीं चला सकते हैं। रियासत के पास तो वसाइल की 1000 ज़राए होती हैं, लेकिन ये जब एक वाक़या करते हैं उसके लिए खाना, लॉजिस्टिक्स, लोगों को पहुंचाना, उसमें किराया, उसमें रिकॉनेसेंस, उसके लिए असला, उसके लिए 3 महीने की यानी रेकी, इस पूरे ऑपरेशन के लिए करोड़ों रुपए की ज़रूरत है। और ये जो है ये तो या बत्ता कर लेते हैं लोगों से, या जो है वो फॉरेन फंडिंग की होती है। अच्छा, आपने अफ़गानिस्तान का नाम नहीं लिया, और अभी जो ट्रेन का वाक़या हुआ, जिस वक्त वो दहशतगर्दी का वाक़या हो रहा था, ट्रेन हाईजैक की जा रही थी, मासूम लोगों को कत्ल किया जा रहा था, कहा ये जा रहा था कि उस वक्त भी डायरेक्ट राब्ते थे। तो ये नेक्सस क्या है? क्या अफ़गानिस्तान इसका पार्ट है? क्या अफ़गानिस्तान से जो दहशतगर्दी हो रही है हम उसे रोक भी सकते हैं कि नहीं? देखिए, पहली बात तो ये कि अफ़गानिस्तान ये पूरा ग्रे जोन है। अफ़गानिस्तान, ईरान का जो सिस्तान बलूचिस्तान है, इसी तरह इंडियन जो कनेक्शन है, इंडिया जो है वो फाइनेंस करती है, वो उनके मेन हैंडलर्स हैं, उनका ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि उन्होंने चाइना को और पाकिस्तान को कंटेन करना है, तो बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना है। अब ऐसे वक्त में जब मिनरल ट्रांजिशन हम देख रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स अब मिनरल कंपटिशन में तब्दील हो गया है, अमेरिका ने चाइना पे पाबंदी उनके यानी रियर अर्थ पे लगाई है, तो बलूचिस्तान की अहमियत और बढ़ गई। लिहाजा बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना अब इंडिया की एक चीप यानी एक सबसे अहम ऑब्जेक्टिव बन गया। उस वजह से उन्होंने सप्लाई करनी है असले की, मीडिया कवरेज की, उनके लिए इंटरनेशनल लॉबिंग की। एंड दैट इज़ हैपनिंग थ्रू अफ़गानिस्तान। दैट इज़ हैपनिंग थ्रू अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान उसका एक लॉन्चिंग बेस है, सिस्तान बलूचिस्तान उनका एक लॉन्चिंग बेस है। जो चाबार पोर्ट है उसमें इंडियन प्रेजेंस है, जो उनकी एम्बेसी है, अभी रेयरली उनका एक डिप्लोमेट रॉक एजेंट जो है वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने हम सब के सामने रखा है, वो ऑपरेट कर रहा है इस नेटवर्क को। इससे पहले कुलभूषण यादव था जो ईरान में बैठ के इस नेटवर्क को चला रहा था, और फिर वो बलूचिस्तान में पकड़ा भी गया। तो इसमें कोई शक नहीं है कि नॉन स्टेट एक्टर फॉरेन स्पॉन्सरशिप के बगैर एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकते। एक ऐसे मुल्क में जो एक एटमी ताकत है, जिसकी एक मजबूत फौज है, 1 इंच पे आप वहाँ पे स्टे नहीं कर सकते। तो आपको सेंचुरी चाहिए जो उनको मुहैया हो रही है। देखिए, बड़ा आसान है, हम इंडिया पे भी इल्ज़ाम लगा दें, अफ़गानिस्तान पे भी इल्ज़ाम लगा दें कि सारा कुछ बाहर से हो रहा है, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि हम बाज़ औक़ात इस बात को नहीं सोच रहे कि कुछ महरूमियाँ, सेंस ऑफ डेप्रिविएशन डेफिनेटली है, मिसिंग पर्सन बहरहाल एक मसला है, आप इसको जितना मर्ज़ी कारपेट के नीचे डालें, ये मसला है। तो इस हवाले से क्या रियासत की गलतियाँ नहीं? देखिए, महरूमी बिल्कुल है, हर जगह है। पाकिस्तान के रूरल एरियाज़ में है, सिंध में है, KP में है, पंजाब में है, लेकिन क्या आम बलोच ने असला उठाया? अभी 6 महीनों में आम बलोच मखबिर के नाम पे 15 लोग शहीद हुए हैं, BLA ने शहीद की। क्या उनकी सपोर्ट है इनके बंदूक वालों के साथ? बिल्कुल नहीं है। अगर कोई रेफरेंडम करवाए कि आप BLA को सपोर्ट करेंगे या स्टेट ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, इस वक्त एक डर की खौफ की वजह से वो चुप हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। 60% जो मैंने आपको आबादी की गिनवाई, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। महरूमी असल में BLA रिफ्लेक्शन नहीं है। महरूमी BLA उस माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है जो महरूमी के नाम पे सौदा बेच रहे हैं, जो दुकान सेटअप हुआ है। ये पाकिस्तान में 2 किस्म की वहाँ पे सियासी लीडरशिप है, एक एथनिक लीडरशिप, एक जो प्रो फेडरेशन अपने आप को समझते हैं। वो पाकिस्तान में बलूचिस्तान के यानी एक शेयर होल्डर हैं, वो स्टेक होल्डर नहीं है, शेयर होल्डर है। आम आदमी इसमें स्टेक नहीं है, इस पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और गवर्नेंस मॉडल में, लिहाजा वो महरूम है। लेकिन बंदूक, मारंग बलोच, सरदार अख्तर मैंगल, ये एक इकोसिस्टम का हिस्सा है जिन्होंने अपना पर्सनल एम्बिशंस को हमारे सामने रखा है। मिसिंग पर्सन का मसला है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। बिल्कुल मिसिंग पर्सन का नहीं है। अगर कोई जेन्युइनली इश्यूज़ हैं तो क्या मिसिंग पर्सन बलोच पश्तूनों में क्यों नहीं है, हज़ारा में क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग जो पहाड़ों में आते हैं, जो हाईजैक करते हैं, जो ट्रेनों को अगवा करते हैं, जो आम लोगों को मखबर के नाम पे करते हैं, ये फुट सोल्जर वहाँ के लोकल लोग हैं जिसको ये लोग मिसिंग पर्सन करते हैं। 80% डेटा हमारे सामने है। बाकी जो डेटा है वो एक एग्जैजरेटेड नैरेटिव है
है जो ये फैक्ट्स हमारे सामने रखना नहीं चाहते हैं। लिहाजा मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस वक्त सारे जो लोग हैं, कभी भी ये हमें कहें कि जो 15 लोग यानी 28 से 32 लोग जाफर एक्सप्रेस में जो दहशतगर्द मारे गए ये मिसिंग पर्सन है, ये तो कहें ना कि ये मिसिंग पर्सन है, लेकिन वो टेररिस्ट हैं, उनके सारे बायोडाटा है। बाकी ये जो लोगों ने बंदूक उठाया है कौन है? ये तो यही लोग हैं जिनको मैं मिसिंग पर्सन कहता हूँ, ये लोग कहते हैं कि नहीं ये जेन्युइन मिसिंग पर्सन। अच्छा, एक और अब डेवलपमेंट रिसेंट हो रही है और वो मिनरल के हवाले से, पाकिस्तान का मिनरल पोटेंशियल, उसके ऊपर अभी इन्वेस्टमेंट फोरम भी हुआ। लगता है कि बहुत सारा ख़जाना बलूचिस्तान के पहाड़ों में मुतहद है। जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो सही नहीं है, आप इसे तस्लीम करें ना करें, तो क्या दुनिया को, सरमायाकारों को हम अट्रैक्ट कर सकेंगे इस सूरत हाल में कि यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करें, जबकि यहाँ पे सिक्योरिटी की सिचुएशन ये है कि बसों से उतार कर लोगों को मारा जा रहा है, ट्रेनें अगवा की जा रही हैं। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बिल्कुल है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि BLA एक स्ट्रेटजिक थ्रेट है पाकिस्तान के सामने, वो कुछ नहीं है। एक महीने की अभी की कार्रवाई से जनरल आसिम मुनीर ने BLA की, मारंग बलोच की, सरदार अख्तर मेंगल की सारे गुब्बारे से हवा निकाल दी। BYC इनएक्टिव हो गई है मारंग के जेल जाने से। अख्तर मेंगल को कोयटा में ना छोड़ के वहाँ के वो एक रेगिस्तान में वो बैठे हैं, चंद सौ लोग हैं। BLA ने कोई मेजर कार्रवाई नहीं की है इस पूरे अरसे में जो एक महीने की मैं बात कर रहा हूँ। लिहाजा उनकी काइनेटिक सलाहियत कुछ नहीं है पाकिस्तान आर्मी के सामने। पाकिस्तान आर्मी का कंसर्न ये था कि क्या हम कोलेटरल डैमेज ना हो, उसमें पब्लिक ओपिनियन जो है नाराज़ ना हो, लोग ऑन बोर्ड हो, कोई भी ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन नहीं कर पा रहे। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, लेकिन ये 6 महीने 5 महीने में सूरत स्टेबलाइज हो जाएगी। और उसके बाकी भी सिक्योरिटी के पैरामीटर्स हैं जिसमें लेवीज़ है, पुलिस है, दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी मजबूत करना है। DC का ऑफिस है, क्योंकि ये सिर्फ आपने फ़ौज वहाँ पे भेज के रैक टैक 15 लोगों को तो मारना नहीं। लिहाजा वो एक पूरा उसका एक इक्वेशन है। लेकिन जहाँ पे माजी में या हाल में अफ्रीका में जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई है फॉरेन में, यानी उन्होंने कोई भी सिक्योरिटी की सूरत हाल नहीं देखी। वहाँ पे कोई एटमी ताकत नहीं है, कोई पाकिस्तान की जैसा आर्मी नहीं। नाइजीरिया से लेके केनिया तक वहाँ पे मिनरल एक्सट्रैक्शन हुए हैं, आज भी हो रहे हैं। तो बलूचिस्तान में भी रिकॉर्डिंग का सबसे बड़ा मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ। 6 अरब बिलियन डॉलर इसमें इन्वेस्टमेंट आ रही है थ्रू बैरिक गोल्ड, ये एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद कि आपने गिनवाएं कि इतने वाक़यात हुए हैं या सिक्योरिटी की सूरत हाल, तो लोग जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक मुल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस पे करते हैं, और इस इंस्टीट्यूशन का नाम है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, डू यू सी अ पॉसिबिलिटी ऑफ अटैक्स, targeted attacks in Afghanistan from Pakistan? देखिए, माजी में भी जब भी इंटेलिजेंस हमारे पास है, मालूमात हैं, तो अटैक हुए हैं। आज भी अगर इंटेलिजेंस है और उधर से एग्जैक्टली प्लानिंग और ऑपरेशन हो रहा है, तो ये पाकिस्तान का राइट है कि वहाँ पे उनको डायरेक्ट टारगेट करें। ईरान में भी हमने उन टेररिस्ट को आपने देखा किया है टारगेट जब निगरान हुकूमत थी। तो ये एक पाकिस्तान का राइट है, और जब भी इंटेलिजेंस आएगा मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट की हैसियत से ये राइट फिर इस्तेमाल करेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब जो सूरत हाल बलूचिस्तान में पैदा हो गई है, उसमें जो बलोच हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं कि जो करंट गवर्नमेंट का सेटअप है उस पर लोगों को इत्तेफाक नहीं है। डू यू एग्री विद दिस? देखिए, बलूचिस्तान में पूरी जो सियासी लीडरशिप है उन पे एतमाद नहीं है, सियासतदान फेल हो गए हैं बलूचिस्तान में। मैंने इशारा किया कि पहले 3 सरदार थे, अब हमने इसको 10 बढ़ा दिए, जिसमें प्रो फेडरेशन सरदार भी डाल दिए हैं, मजबूत लोगों को भी डाल दिए। वो सिर्फ बलूचिस्तान में स्मगलिंग रैकेट कंट्रोल करते हैं, वो लोगों को पसमानदा रख रहे हैं, वो वसाइल की तकसीम में अपना हिस्सा जो है वो मेजर पोर्शन वो लोग यूटिलाइज़ करते हैं। और हुकूमत ने, रियासत ने एक ईजी स्केप के लिए शॉर्ट टर्म पॉलिसी के तहत उन्हीं को माना है कि बलूचिस्तान के असल नुमाइंदे हैं, जबकि बलूचिस्तान की आबादी एम्पावर्ड नहीं है, उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन, ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आपने एक चीफ एग्जीक्यूटिव को तो एक कम्युनिटी से लिया है, क्योंकि सुबह इतनी बुनियादों पर आपने बनाया। 18 CM में से तो आप एक चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बना सकते बाकी कम्युनिटीज़ से। अगर आपने पंजाब में एक बलूच को वज़ीर-ए-आला बनाया, कोसा को बनाया, बुज़दार को बनाया, बलूचिस्तान में कोई पश्तून, हज़ारा, पंजाबी कोई CM नहीं बन सकता। एक तो आपने एक ऐसा पॉलिटिकल ऑर्डर खड़ा किया है जिससे आपने डिसएम्पावर किए 90% लोगों को, यानी जिसमें आम बलूच भी शामिल है, क्योंकि अख्तर मेंगल आम बलूच का नुमाइंदा तो नहीं है, वरना वर्ल्ड में जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर होता, वरना डेरा बुगटी में नवाब अकबर बुगटी साहब के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर होता, वहाँ लसबेला में होता,
संजरानी साहब के छागी में होता तो ये लोग अपने इलाकों में तो इन्वेस्टमेंट करते, हालांकि ये अरबपति से भी ज़्यादा खरबपति हैं, बिलियंस में इनके एसेट्स हैं, लिहाजा ये एसेट्स तो उन्होंने मजदूरी और मेहनत से और मिडिल क्लास की लाइफस्टाइल से तो नहीं कमाए, यही रियासत पाकिस्तान को खाया है, लिहाजा ये लोग बलूचिस्तान के जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं। अच्छा, एक बलूचिस्तान का मसला मुझे बताइए, क्या ये दुरुस्त आइडेंटिफिकेशन है? एक मसला तो ये भी रहा कि एक पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है और रातों रात एक पार्टी बन जाती है और अगले दिन वो पार्टी एक तरह से इस पॉलिटिकल सिस्टम को कूक कर लेती है। बाप पार्टी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो आपके ख्याल में वो भी गलती थी? देखिए, बाप पार्टी अगर मिडिल क्लास की होती तो मैं इसको सपोर्ट करता, लेकिन अगर सरदारों की है, इलेक्टेबल्स की है, स्मगलर्स की है, तो मैं उसको अपोज करूँगा, चाहे वो ख़ुद हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट करे, चाहे कोई फेडरल गवर्नमेंट करे, चाहे कोई पॉलिटिकल लीडर लाहौर का या इस्लामाबाद का वो करे। ये सारे लोग वही एलीट क्लास हैं जिन्होंने बलूचिस्तान को पसमानदा रखा हुआ है। फिर उसी एलीट क्लास जब ये पावर में नहीं होते हैं, मरकज़ को, स्टेट को ब्लैकमेल करते हैं कि हमें वसाइल नहीं मिल रहे, आपने हमें सीएम बनाना है, आपने हमें हमारी जो है गाय ज़िबा की। अच्छा, now we are talking about the solution of this crisis in बलूचिस्तान। एक सिचुएशन ये नज़र आई कि डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब चले गए नवाज शरीफ साहब के पास, उससे यूँ लगा कि वो 2017 में जो गलती हुई थी शायद उसके रिवाइव होने का कोई इम्कान है। नवाज शरीफ साहब ने कहा अख्तर बेंगल साहब से बात करें, अख्तर बेंगल साहब ने आज कह दिया कि नवाज शरीफ के पास तो कोई पावर है ही नहीं, वो किस हिसाब से बात करें। तो इसका हल पॉलिटिकल है, इसका हल ऑपरेशन तो सारी उम्र नहीं रह सकता, 1-2 महीने होगा, फिर उसके बाद हल तो पॉलिटिकल होगा। तो क्या करें हम? पहली बात 3-4 स्टेप्स बताएं हमें कि हम बलूचिस्तान को बेहतर कर सकें। देखिए, कोई पॉलिटिकल नहीं है। अगर पॉलिटिकल का मतलब है डॉक्टर मालिक को फिर सीएम बनाना, वो उसके एम्बिशंस तो हैं, लेकिन वो बलूचिस्तान को कुछ नहीं दे सकता। अगर पॉलिटिकल हल का मतलब है अख्तर बेंगल को सीएम बनाना, तो ये हल नहीं है, वरना ये अभी 18 सीएम तो यही लोग हैं, ये कर लेते। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, बड़े उनकी इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, लेकिन एक विज़न, इरादा और कैपेसिटी, ये 3 चीज़ें एक सियासतदान के लिए लाजमी होती हैं। सियासतदान एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन की सोचता है, वो एक अरब दे देगा, वो लैपटॉप प्राइम मिनिस्टर साहब अभी आए थे वो दे देगा, लेकिन बलूचिस्तान का मसला वहाँ पे रिफॉर्म्स है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल। अगर हमने सोशल में इन्हीं सरदारों को लीडरशिप माननी है तो बलूचिस्तान पसमानदा रहेगा। क्या कौन करेगा? पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है, अगर आपने बाप इलीट इलेक्टेबल के लिए बनाया है तो इन लोगों के सामने तो आम आदमी खड़ा नहीं हो सकता। अगर आपने जमहूरियत के नाम पे इलेक्शन कराने, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मिडिल क्लास के लोगों को हम क्यों प्रमोट नहीं करते हैं? क्या वर्ड में कोई मिडिल क्लास का आदमी सरदार अख्तर के सामने खड़ा होगा, अकबर बुख्ती लेट के सामने खड़ा होगा, महमूद खाना चकज़ई के सामने आम आदमी खड़ा हो सकता है? नहीं। ये लोगों की जो इस वक्त जो क्लाउट है, हर आदमी के पास हज़ारों गार्ड है, उनके पास पैसा है, लिहाजा अगर ये जमहूरियत है तो आपने उन लोगों को पसमानदा रखना है। एम्पावरमेंट है कि आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सोल्यूशन इज़ नॉट सोल्यूशन इनफ। नो सोल्यूशन, देखो पॉलिटिकल मसला है ही नहीं। बलूचिस्तान का मसला एक नए सोशल और इकोनॉमिक और गवर्नेंस मॉडल है। बलूचिस्तान के पास वसाइल बहुत ज़्यादा है। इस साल हम तकरीबन 100 अरब लैब्स हो जाएंगे। हम निगरान हुकूमत थे, हमारी गवर्नमेंट से 93 अरब लैब्स हो गए। जो वसाइल हमारे पास है वो हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे। ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक बेलगाम घोड़ा है। अच्छा, वज़ीरों के पास कोई अख्तियार नहीं है। जो वज़ीर है वो सिर्फ पैसे बनाने के लिए आते हैं। जो सीएम है उसने 10 अरब अपने इलाके में लगाने और बाकी उसने नहीं देखना है बलूचिस्तान। तो ये गवर्नेंस मॉडल सस्टेनेबल नहीं है। इसमें आप हज़ारों डॉलर आप डालें, ये ब्लैक होल में जाएंगे, आम आदमी को कुछ नहीं मिलेगा। तो इसी कौन सा गवर्नेंस लेवल देखिए सिस्टम सजेस्ट कर रहे हैं? देखिए, बलूचिस्तान में हमें सूबा जो बनाया था उसको हमने रिकन्सिडर करना है। हमने बाकी सूबे बनाने हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे बलूचिस्तान में, ताकि हर आदमी वहाँ पे एक स्टेक होल्डर बने। अभी तो आपने 200 यानी एक दर्जन ख़ानदानों को स्टेक होल्डर बनाया है, या मैं उसको कॉर्पोरेट उसमें टर्म में शेयर होल्डर कहता हूँ। आम आदमी तो वहाँ पे आ ही नहीं सकता इस पूरी असेंबली में। आम आदमी तो सीएम बन नहीं सकता, आम आदमी तो कोई वज़ीर बन नहीं सकता। ब्यूरोक्रेसी में भी आपने उन लोगों को लगाया है जो करप्ट है, महा करप्ट है। वहाँ पे आप डीसी जो है बेचते हैं, वहाँ पे कमिश्नर की बोली लगाई जाती है। अब ऐसे इलाके में जिसमें आपको रियल इंटेलिजेंस चाहिए, अगर इन लोगों के ज़रिए हम सुबह चलाएँगे तो ये नहीं होगा। लिहाजा हम इमीडिएटली 5 सूबे हमें एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर बनाने की ज़रूरत है विद इन बलूचिस्तान। ठीक है, तो इसी के साथ
साथ हमें एक नया कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जिसमें बलूचिस्तान में ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म हो, बलूचिस्तान में मिनरल और दूसरे वसाइल की यानी एक्सप्लोरेशन के लिए, उसकी हैंडलिंग के लिए हमें वन विंडो ऑपरेशन चाहिए जिस तरह SIFC बना है। इसी के साथ हमें जो यूथ है, वुमेन है, माइनॉरिटीज़ हैं, बाकी कम्युनिटीज़ है, उनको एम्पावर करना है हर डोमेन में, सिर्फ सियासत में नहीं, उनको यानी गवर्नेंस में करना है, उनको इन तमाम वसाइल में स्टेक होल्डर बनाना है। और इस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बलूचिस्तान के मसाइल, अगर कोई वहाँ पे पानी नहीं है तो इसके लिए बड़ा आसान हाल है, अगर वहाँ पे जॉब नहीं है तो उसके लिए बड़ा आसान हाल है। बलूचिस्तान इज़ अ रिचेस्ट प्रोविंस, वहाँ की आबादी आधे फैसलाबाद के बराबर है। मुझे बताएं कितने जवान हैं? 20,000 जवान जो है वो मार्केट में इंटर होते हैं। अब 20,000 जवान को आप 30 भी, अगर सिर्फ आप कुछ भी ना करें, 30,000 रुपये भी दें, वी आर टॉकिंग अबाउट 5 बिलियन। अब 5 बिलियन तो हम यानी सैलाब के नाम पे खा लेते हैं। सो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। ठीक है, आपके ख्याल में बलूचिस्तान का मसला सॉल्वेबल है अगर हम इसको सूबे को मज़ीद तकसीम करें 5 नए सूबों में? एक बिल्कुल नई बात है, मुख्तलिफ बात है, इससे पहले हमने सुनी नहीं है। आपकी तशरीफ़ आवरी का बेइंतहा शुक्रिया। आपसे जब भी गुफ्तगू होती है लुत्फ़ आता है। नाज़रीन, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।